Hello, students. I will discuss with you anthropology. It is very interesting subject. It studies not only biological aspects, but it also analyzes socio-cultural aspects of the mankind. You know, there are various social institutions that are existing in our society. Family is a social institution that involves males and females. Marriage is also a social group formed by union of one or more male with one or more female. अब मैरिज और फैमिली में biological reproduction takes place, and marriage and family economic cooperation also takes place. So socialization takes place in such social institutions. You have to these social institutions such as marriage, family, like what are the different types of family? One is consanguineous family, one is affinal family. Affinal family is the family formed after marriage. Consanguineal family, that family in which person is born. There are monogamous family, polygamous family. Monogamous family has monogamous marriages and polygamous family has polygamous marriages. You have matrilineal family, here the property, in case of matrilineal, the property takes place in the male line, and matrilineal family, the property takes place in the female line. There are other types of marriage like another types of like you have preferential marriages like parallel cousin marriage in which parents of both husband and wife are brothers and sisters. There are two types of cousin marriage. We have parallel cousin marriage in which the parents of marriage partners are either both brothers or either both sisters. And in cross cousin marriage is that type of marriage in which the marriage partner, parents of the marriage partner are one brother or one sister.
So in some societies, parent cousin marriages are preferred, and in some societies, cross cousin marriages are given preference. You have to be very smart in attempting such questions. You have various types of descents. There are various. You have hypergamy, hypogamy marriage, hypergamy marriage in which female marries that person belonging to higher caste, and in hypogamy marriage is that type of marriage in which out of husband and wife belong to upper caste group. Now, what is caste? Caste is segment division of society. There is hierarchy in caste. We have char varnas like various varnas. जैसे चार वर्णास होते हैं, मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो चार वर्णास के नाम क्या क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये है आश्रम। और वर्णास की बात करें, चार वर्णास है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्णास आ गए। तो वर्ण ये वैदिक पीरियड से चार वर्णास है। और वर्ण आप पर्सन किस वर्ण में फॉल करेगा या किस वर्ण से बिलोंग करेगा, वो बर्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर कोई एजुकेशन अटेन करता है तो वो ब्रह्मचारी, वो ब्राह्मण कहलाता है। अगर कोई ये क्षत्रिय का काम करता है तो उसको क्षत्रिय कहलाता है। अगर कोई आर्टिजन ट्रेड करता है उसको वैश्य कहा जाता है। हाँ, अगर कोई क्लीनलीनेस के काम करता है, छोटे काम करता है, उसको शूद्र वर्ण का नाम में डाला जाता है। तो आप देखोगे, हमने ये अंडरस्टैंड किया, उसके बाद ये कास्ट सिस्टम जो था ये क्रॉस सिस्टम है। और ये कास्ट सिस्टम पर्सन किस कास्ट से बिलोंग करेगा वो डिपेंड किस पे करेगा कि उसने किस कास्ट में जन्म लिया है। और जिस कास्ट में जन्म लिया होगा वो उसी कास्ट का कहलाएगा। ये इसका ऑक्यूपेशन से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो ये है क्या कास्ट और वर्ण मैं बता रहा था आपको। तो आप देखोगे फैमिली की मैरिज की बात कर रहे थे हम, हाइपरगैमी हाइपोगैमी हम पढ़ रहे थे ना। तो आप देखेंगे फैमिली को पढ़ने के लिए हमने देखा कि फैमिली भी एक डिफरेंट टाइप्स होती है। पैट्री लोकल रेजिडेंस वाली फैमिली होती है, मैट्री लोकल रेजिडेंस वाली फैमिली होती है कि कपल हस्बैंड वाइफ
they do marriage, and after marriage, husband and wife both live in wife's mother's house. And in patrilocal marriage, patrilocal family, what happens after marriage? Both husband and wife live with husband's paternal house. So that is patrilocal residence and matrilocal residence. Patrilineal family are those family यहाँ in which property move in the parents line, father's line, and matrilineal family is that type of family in which the property moves in the female line. टाइप्स ऑफ मैरिजेस पढ़ी है हमने, डेफिनेशंस दी थी वेस्टर मार्क ने, कैथरीन गो ने, जीबी मर्डॉक, ये 3 सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने डेफिनेशन दी कि क्या होती है मैरिज और फैमिली क्या होती है। इकोनॉमिक सिस्टम भी हमने देखा है। इकोनॉमिक सिस्टम में हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम दैट इंक्लूड्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption. Production means doing hunting, doing gathering, doing collection job like our ancestors do. They were nomadic and do hunting and gathering, and in Neolithic period agriculture started. Agriculture was started in Neolithic period. So distribution includes that collecting. So village headman collects food grains, materials from those people that has surplus with them and redistribute the surplus among the needy tribal groups. So there are three types of exchange. There is reciprocity, there is redistribution, and there is market exchange. So village chief or chiefdom exists in Trobriand Islanders people. So tribal chief so people belong to different caste groups. I have them. People living in those caste groups just focus on what you are thinking about it. So there is the thing of it that I want to discuss with you. So you have various
like economic system, African political system. We study how people live, politics, political life of the tribal societies, various forms of political organization are band, tribe, chiefdom, kingdom, and state. That things contains we have leadership, informal leadership is there, and there is a decentralized form of government and centralized administrative hierarchy. Central system. So this needs to be done and discussed. How these types of central administration system takes place in various forms of political organizations. We also discussed about religion. Religion is the form of belief in soul of the dead ancestors. It is the belief in supernatural forces. It is a belief there is impersonal power in every human being. So I want to elaborate it with you. I need to do lots of elaboration with you. There are many anthropologists, E.B. Tyler, Franz Boas, who is called the father of American anthropology. I should be giving you extra knowledge, and the thing is that I need to discuss with you all that. I need you to know that there are different types of people. I am just giving you the various forms of religious life. There are many tribal societies living in India. Irulas, Panyans, Nagas, Garos, Khasis, Mundas, Santals, Orvans, Lepchas, Bhotias, Todas, Chenchus, Kadas, Ghans, Pawns, Andamanis, Sentinelese, Ongis, Jaravas.
then Bhils, then Varlis, Varsis. All these are the tribal groups. They have varied social economic life. They have different political life. They have different economic aspects. Economy is very simple. Tribal groups make use of simple technology. They do hunting and gathering, and those who do hunting and gathering are pastoralist societies. They are nomadic societies, and pastoralists mean they do domestication of animals. And Toda is a pastoral society. Chanchus is a hunting and gathering tribes. There are many tribes who do fishing. There are many tribes who do fishing. So there are arts and craft producing communities. Some tribal groups are doing blacksmith job. Some tribal groups are engaged in ornaments. Some tribal groups are doing the job of goldsmith. Some tribal groups are making pottery. Okay, so different techniques were being adopted. So you have various particular vulnerable tribal groups, and there are 75 groups that have been recognized, that are given the status of particular vulnerable tribal groups, and there are 75 tribal groups. And what are the characteristics of these particular vulnerable tribal groups? PVTG. So they have pre-agricultural technologies. The population is decreasing. They have very low level of literacy, and they live in pre-agricultural technology. And there are various tribal groups. So Sentinelese, Jarawas, Chenchus, Birhor, Baiga, they all belong to particular vulnerable tribal groups. So these are the various tribal groups: Baigas, Birhors. You must need to remember all these tribal groups: Birhor, Baiga. We have Chenchus, we have Sentinelese, we have Jarawas, Birhor, Baiga, and Chenchus. These are the particular vulnerable tribal groups, special category PBTG. Birhor, we have Baiga, we have Chenchus. Birhor, Baiga, and Chenchus. You must remember these groups. Okay, so
Various tribal groups that live in Himalayan region are Ladakhis, we have Gujars, we have Bakarwals, we have Gaddi, we have Jaunsari, Gaddi, we have Bhotia, Gujars, Bakarwals, we have Bhils, Varlis, Kolis, Garasia in Western Zone. We have Chenchus, Todas, Kotas, Kurumbas, Irulas. साउदर्न जोन में इरुलास रहते हैं, टोडास रहते हैं, कोटास रहते हैं, कुरुम्बास रहते हैं। जहाद करने हैं आपने। सेंट्रल ईस्टर्न जोन में बेगास है, बिल्स है, कौंड है, खरिया है, मुंडा है, ओ है, ओरवान है। तो अब इनमें देखा जाए तो जहाँ तो लिंग्विस्टिक ग्रुप इनमें ऑस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक ग्रुप, इनकी जो लैंग्वेजेस है दैट बिलोंग्स टू ऑस्ट्रो एशियाटिक linguistic group. People, tribals living in South India, you have Todas, you have Kotas, you have Irulas, Chenchus. Irulas and Chenchus are the tribals that are living in the South India. Irulas, Chenchus. Central India, you have Benga, Bhil. You have Orans, Gonds, you have Chenchus, Irulas. The northeastern region, Garo, Khasi, Mizo, Naga. So, there are various zones divided into various zones. Tribals are divided into various zones. So, you know, the various tribal groups, how their economic life is impacted, how their social life are impacted, what religious practices do they adopt. You have Irulas, you have Chenchus, you have Bengas, we have Pawns, Gonds, Kotas, Varlis, okay, Nagas, Gaddis, you have Gujars, Bakarwals. So you have Naga, Mizo, Khasi, Garo, Bodo. Okay. So northeastern zone you have Tibeto-Chinese, Tibeto-Burmese language group, and they are Mongolites. Tibeto-Burmese group. Okay, so you have tribal groups all over India. You have Chenchus in South India. You have Irulas in South India. Todas, Kotas, ठीक है, Kurumba. Okay, Western you have, they have Caucasoid elements. They have mixed of astrolite and Caucasoid elements. In North India have Caucasoid elements. You have Negroids, you have Mongolites. North India, Western India, Central India, Proto-Astrolite, mix of astrolites and Caucasoid elements. You must understand this. You must remember this. You have
to understand the various racial groups. Okay, so you know that taxonomy. What is primate taxonomy? Taxonomy, you must understand it. So there is a guys who students just listen to me. What am I speaking? You must focus on the whiteboard, focus on the board and me, to my language. Taxonomy, not me, but more towards my content. So it is the science. I am classifying the living organisms. Okay, so you are classifying where location of various primates, where human beings fit, and how the categorization of the various primates are done, classification of living organisms are done. There is a relationship between each other, evolutionary relationship is there between them. That is called primate taxonomy. So you have, when we classify primates belongs to Mammalia class and order is primates, kingdom is Animalia, phylum is Chordata, Animalia, Chordata, class is Mammalia, order is primates. So primates is divided into suborders, that is lower primates, Strepsirrhini, and higher primates is Haplorhini. So what is lower primate? They have smaller brains. Okay, they have good sense of smell, whereas Haplorhini have reduction in smell capacity. They have stereoscopic vision. We have higher primates like apes, monkeys, humans, tarsiers. They have larger brain. They do not rely on smell. They have stereoscopic vision. So Strepsirrhini and Haplorhini are two suborders. Like we have, just go in detail. We have order is primates and suborder is lower primates and higher primates. Haplorhini is further divided into tarsiforms, tarsiers. Then we have anthropoids. Anthropoida constitutes, tarsiers includes tarsiers, non-nocturnal primates. They are nocturnal primates, they are small size, छोटा होता है उनका, और नॉक्टर्नल प्राइमेट्स होते हैं, ब्रेन स्मॉलर होता है उनका, और ब्रंचाइजेशन उनकी होती है. तो ऑर्डर प्राइमेट्स की बात करें, हायर प्राइमेट्स की बात करें, तो टार्सीफॉर्म्स है, एंथ्रोपॉइड्स है. ओके, एंथ्रोपॉइड्स की बात करें, स्ट्रेप्सिरहिनी, हैप्लोरिनी, then we have monkeys, apes and humans. So anthropoida is further divided into sub infraorder. We have platyrians, we have catarrhines. Platyrian constitutes new world monkey and catarrhine constitutes old world monkey and apes. So platyrian new world monkey lives in South America and Central America. They have flat noses. There is platyrian new old world monkey, no tails,
no prehensile tails, narrow nose, spider monkey, howler monkey, baboons, macaque, gibbon, gorilla, humans. So we are studying about man order primates. So it belongs to Mammalia class, and it belongs to Mammalia class. Kingdom Animalia. So you have Chordata phylum, क्लास मेमेलियन, ऑर्डर प्राइमेट्स। प्राइमेट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है लोअर प्राइमेट्स स्ट्रेप्सिलिनी, एक है हायर प्राइमेट्स हैप्लोरिनी। हायर प्राइमेट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं एंथ्रोपॉइड्स में, टार्सिफॉर्म्स में। एंथ्रोपॉइडा को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो बात जब करनी है तो लोअर प्राइमेट्स है, हायर प्राइमेट्स है। हायर प्राइमेट्स को हम डिवाइड करते हैं टार्सिफॉर्म्स पे, देन और एंथ्रोपॉइडा में। एंथ्रोपॉइडा को फर्दर हम डिवाइड करते हैं प्लेटिनिन में, जिसको हम बोलते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी। टेल्स उनमें होती है, नोज स्मॉल होता है, फ्लैट होता है। दूसरे होते हैं कैटरीन, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जैसे मकाक है, देन एप्स है, ह्यूमंस है। और जो दूसरे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की बात करी मैंने, स्पाइडर मंकी है, हॉलर मंकी है, गिबॉन है, गोरिल्ला है कैटरीन में। तो कैटरीन को फर्दर डिवाइड किया ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एप्स एंड ह्यूमंस में। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं इसमें, और हम डिपिक्ट करते हैं जो डिफरेंट प्राइमेट्स हैं, कैटेगरीज हैं प्राइमेट्स की। हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, और हम बताते हैं कौन सा प्राइमेट कहाँ पे सिचुएटेड है, फ्लो चार्ट में कहाँ फॉल करता है, और उनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनमें, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो आप देखोगे इसमें अब आगे हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करें तो इसमें नॉन प्रीहेंसाइल टेल्स होती है। ठीक है, तो ब्रेन स्मॉलर होता है, क्वाड्रूपेडल होते हैं, जैसे बबून्स हो गए, लंगूर्स हो गए। तो ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, बबून्स, लंगूर्स। अब आगे एप्स एंड ह्यूमंस, ये होमिनोइडी में आते हैं। तो टेल्स इनमें नहीं होती हैं, ब्रेन इनके लार्जर होते हैं, अपराइट पोस्चर होता है, कम्प्लेक्स बिहेवियर होता है इनका। तो आपने होमिनोइडी की बात की, तो आप देखोगे कि जो कैटरीन है, जैसे कैटरीन है, कैटरीन को हमने फर्दर डिवाइड किया स्ट्रेप्सिलिनी, हैप्लोरिनी, प्लेटिरीन, कैटरीन, हमने फर्दर डिवाइड किया। जब आप चीजों को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी, आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप देखिए व्हाइट बोर्ड के ऊपर, देखिए आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर नजर रखिए कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, उसको नोट आउट कीजिए। तो आप हम मैं बताया आपको कि क्या होता है कैटराइन, प्लेटिनिनी है, कैटरीनी है। तो कैटरीनी की बात करें तो कैटरीनी आप देखोगे कि कैटरीनी जो है दो भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, तो एक तो हो गया ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जिसमें आता है लंगूर्स आते हैं। ओके, और आप जो उसके बाद आता है होमिनोइडी आती है, इसमें एप्स आते हैं और ह्यूमंस आता है। और ये जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ये बेसिकली आप बात करें इनकी क्वाड्रू पैडल है।
ठीक है, क्वाड्रूपेडल है, तो क्वाड्रूपेडल है और टेल में होती है। ओके, तो स्मॉलर ब्रेन है। अब वर्डिडी की बात करें, लार्जर ब्रेन है। ओके, तो अब टेल्स इनमें नहीं होती हैं, पोस्चर इनका अपराइट होता है, और जो पहले मैंने बताया उनमें पोस्चर जो होगा वो क्वाड्रूपेडल पोस्चर है, इनमें बाइपेडल पोस्चर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। किनका? कैटरीन का, होमिनॉइडी का। कैटरीन को हमने फर्दर डिवाइड किया है सर्को पिथिकॉइडिया एंड होमिनॉइडा, होमिनॉइडिया, होमिनॉइडिया और सर्कोपिथिओइडिया, सर्कोपिथिसॉइडिया एंड होमिनॉइडिया। तो ये ब्रॉड कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है सर्कोपिथिसॉइडी की। तो हाइलोबैक्टीडे की बात करें, होमिनिडे की बात करें, सर्कोपिथिसॉइडा, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, होमिनोइडा, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, टेल नहीं है, लार्जर ब्रेन्स है इनके। ओके, तो आपको इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कईयों का स्मॉल नोज है, फ्लैट नोज है, बड़े नोज है, धूम नहीं है, धूम है, स्मेल पे फोकस, स्मेल पे रिलाई करते हैं, ये विजन पे रिलाई करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, क्वाड्रूपेडलिज्म। होमिनोइडी की बात करें तो आप देखोगे एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं इसमें। तो होमिनोइडी को हम फर्दर आगे डिवाइड करेंगे हाइलोबैक्टीडी और होमिनिडी। हाइलोबैक्टीडी में आएंगे पक्का गिबॉन्स, लेसर एप्स, और होमिनिडी में आएंगे ग्रेट एप्स एंड ह्यूमंस, ओरंगुटन्स, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, ह्यूमंस, गिबॉन्स आएंगे हाइलोबैक्टीडी में, बबून्स आएंगे ओल्ड वर्ल्ड मंकी में, बबून्स, लंगूर्स, गिबॉन्स। ये देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो क्या चीजें हैं। देखो, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है तो सर्कोपिथिसिडाई है, सर्कोपिथिसिडाई है। तो सर्कोपिथिसिडोइडिया, सर्कोपिथिसॉइडिया। तो आप देखोगे कि कैटरीन को फर्दर डिवाइड किया गया है दो भागों में, सर्कोपिथिसिडाई, होमिनिडाई। सर्कोपिथिसिडाई है ओल्ड वर्ल्ड मंकी और होमिनिडाई है एप्स एंड ह्यूमंस। एप्स में हमने लेसर एप्स आते हैं, ग्रेट एप्स आते हैं। हाइलोबैक्टीडी लेसर एप्स जिसमें गिबॉन्स आता है, लंगूर्स तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आ गए, बबून्स भी ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आ गए, गिबॉन्स एप है, लेसर एप है, ग्रेट एप में ओरंगुटन्स आ गए, बबून्स, गिबॉन्स, ओरंगुटन्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ह्यूमन। स्लोपेथिकस, सर्मापेथिकस वो बिलोंग करते हैं ओरंगुटन से, एंसेस्टर्स हैं वो ओरंगुटन्स के। तो आपको ये फैमिली जो है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया इसको। ठीक है, तो प्राइमेट्स बेसिकली हैं क्या? ये मैमल्स हैं, मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं, नॉन कॉर्डाटा है, आर मैमल्स जिनका लार्ज ब्रेन होता है, इनके हैंड्स जो है वो ग्रास्पिंग होते हैं, फॉरवर्ड फेसिंग आई होती है इनकी, लार्जर ब्रेन और सोशल बिहेवियर होता है। ह्यूमंस जो है वो ऑर्डर प्राइमेट से बिलोंग करते हैं। सब ऑर्डर उसका है
प्लेटिरिनी, हैप्लोरिनी, कैटेरिनी, होमिनिडाई एंड जीनस होमो, जीनस उसका होमो है। तो हम टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, ट्री चार्ट बनाते हैं। ओके, तो अब रेशियल की बात हमने की, रेशियल क्लासिफिकेशन की बात हमने की। आप देखोगे इन्हीं चीजों को आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस आपको, आप देखिए, समझिए और अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, हम लिखेंगे ऊपर प्राइमेट। तो प्राइमेट्स के दो डिविजन्स हैं। कौन सी डिवीजन थी, एक थी स्ट्रेप्सिलिनी, दूसरी थी हैप्लोरिनी। स्ट्रेप्सिलिनी लोअर प्राइमेट्स, हैप्लोरिनी हायर प्राइमेट्स। हैप्लोरिनी को फर्दर डिवाइड किया गया है आगे प्लेटिरिन और कैटेरिन में। ठीक है, अब प्लेटिरिन और कैटेरिन की बात अगर हम करें, तो प्लेटिरिन और देखिए हमने क्या किया, प्लेटिरिन और कैटेरिन की बात अगर हम करें, हम आई थिंक कहीं मैंने दूसरा विंडो खोल लिया है। प्लेटिरिन और कैटेरिन की बात करें, देखो हैप्लोरिनी, हैप्लोरिनी, स्ट्रेप्सिलिनी और हैप्लोरिनी, लेमूर्स, लॉरिसस, गैलागोस, लेमूर्स, लॉरिसस, गैलागोस, ये क्या है, प्लेटिरिन। देन क्या है ये, स्ट्रेप्सिलिनी है, लेमूर्स है, लॉरिसस है, गैलागोस है, किंगडम है, एनिमिलिया है, फाइलम कॉर्डाटा है, क्लास मैमिलिया है, ऑर्डर प्राइमेट्स है। वेयर ह्यूमंस फिट अमंग द प्राइमेट्स, टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो आप देखोगे यार, फोकस करो, स्ट्रेप्सिलिनी है और हैप्लोरिनी है। हैप्लोरिनी अगर हायर प्राइमेट्स, टार्शियर्स, मंकीज, एप्स, ह्यूमंस, लेमूर्स, लॉर्सियस, गैलापगोस। और हैप्लोरिनी को फर्दर डिवाइड किया गया है किन में, एक तो एंथ्रोपॉइड्स में डिवाइड किया गया है और टार्शी फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। और एंथ्रोपॉइड्स को हमने फर्दर इसकी डिवीजन की है। एंथ्रोपॉइड यहाँ पे आप लिख दीजिए, मंकीज आते हैं इसमें, एप्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं। एंथ्रोपॉइड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया, इसको हमने प्लेटिरिन और कैटेरिन में डिवाइड किया। तो प्लेटिरिन में आ जाते हैं आपके मंकी और कैटेरिन में आते हैं आपके एप्स और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। प्लेटिरिन में आ गए न्यू वर्ल्ड मंकीज और कैटेरिन में आ गए ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड एप्स। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज आ गए, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आ गए, फिर कैटेरिन को फर्दर हमने आगे डिवाइड किया है सर्कोपिथिसिडाई और हमने डिवाइड किया है होमिनिडाई। सर्कोपिथिसिडाई में हम करते हैं बात, हमने ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात की, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में आते हैं आपके बैबून्स आते हैं, बैबून्स आ जाएंगे, और होमिनिडाई में आपके आ जाएंगे गोरिल्लास आ जाएंगे, एप्स आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे। फिर होमिनिडाई के हमने डिवाइड किया गया हाइड्रोबैटिडी में आगे, और हाइड्रोबैटिडी में हम आगे होमिनिडाई में। तो एक अच्छे से आपने टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद भी अपने नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट करना है। ओके, तो ये है हाइड्रोबैटिडी। तो होमिनिडाई, होमिनोइडा की बात करें, होमिनोइडा की बात करें, तो होमिनोइडा की बात करें तो एप्स आते हैं। और देखो देखो दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैन जो है ऑर्डर प्राइमेट है, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट।
प्राइमेट क्या है ऑर्डर, मेमिलिया क्लास क्या है मेमिलिया, ठीक है, और एनिमिलिया है किंगडम। और देखेंगे इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक है स्ट्रेप्सिलिनी और एक है हैप्लोरिनी। हैप्लोरिनी को फर्दर दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टार्सिफॉर्म्स, और दूसरा किया गया है इन्होंने एंथ्रोपाइड्स में। एंथ्रोपाइडिया को फर्दर डिवाइड किया है प्लेटिलिन और कैटिलिन में। कैटिलिन को फर्दर आगे डिवाइड किया गया गया है, याद करो आप, एक तो डिवाइड किया गया है कैटिलिन को सर्कोपिथिसिडाई ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और होमिनिडाई ओल्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड एप्स, और होमिनिडाई में आए थे एप्स एंड ह्यूमंस, और सर्कोपिथिसिडाई में आ गए ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो कैटरीन प्लेटिलिन है, ठीक है, एंथ्रोपॉइडा के केस में। तो कैटरीन को फर्दर आगे डिवाइड किया, होमिनोडाइडी को आगे फर्दर डिवाइड किया, हाइलोबैटिडी और होमिनिडी। तो आपने देखा होगा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर देखा आपने, सब ऑर्डर देखा आपने, इंफ्रा ऑर्डर देखा, सुपर फैमिली क्या है, फैमिली क्या है, होमिनिडाई फैमिली है इनकी, फैमिली क्या है, सुपर फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, इंफ्रा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर, सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली क्या है, ये सारे। तो मैमल्स प्राइमेट्स को अगर आपको पूछे प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेट्स एक मैमल्स होते हैं, प्राइमेट्स एक मैमल्स होते हैं, उनका हैंड्स ग्रास्पिंग होता है, जैसे हम, जैसे हमारा हैंड्स है ना, ग्रास्पिंग हैंड होता है, ब्रेन हमारा बड़ा, जैसे बड़ा है हमारा ब्रेन, तो ब्रेन बड़ा होता है, ठीक है। और आइज जो फॉरवर्ड फेसिंग होती है, जैसे हम, अब प्राइमेट्स को डिफाइन करना है तो आप इंसान की एग्जांपल ले लीजिए, फॉरवर्ड फेसिंग क्या है, आइज है, और ग्रास्पिंग हैंड है, और ब्रेन लार्ज है, और सोशल बिहेवियर भी है। तो ये प्राइमेट्स की एक जो है वो मैमल्स है बेसिकली। ओके, तो आप देखोगे कि बेसिकली आप देखोगे प्रोकॉन्सुल क्या है, प्रोकॉन्सुल है, ड्रायोपिथिकस है, गिगांटोपिथिकस है। तो इनके बारे में अगर समझना होगा, पढ़ना होगा, तो क्या समझोगे, क्या पढ़ोगे इनके बारे में, ठीक है। तो वो भी आपने इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रेस की बात करें, रेस की क्लासिफिकेशन एच.एस. रिचले है, एस.एस. सरकार है, जी.एस. गुरे हैं। तो इनने सभी ने अपने अपने तरीके से रेसेस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। पहले हम इनकी पढ़ेंगे। तो एच.एस. रिचले की बात करें, इन्होंने वेरियस रेशियस क्लासिफिकेशन दी। तो इन्होंने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स की, नेशन इंडेक्स के बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन की। ऐसे सरकार ने सीरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी की। जीएस गुरे की बात करें तो सोशियो कल्चरल सिंथेसिस था इनका, ठीक है। तो डिफरेंट रेसेस को डिवाइड किया। तो अब जो है इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें, अब जीएस गुरे हैं। अब जैसे नेशन इंडेक्स, इन्होंने जो रेसेस की बात करें हम, तो आप देखोगे इंडो आर्यन है, द्राविडियन है, प्रोटो अस्ट्रोलॉइड है, मंगोलॉइड है, आर्यो द्राविडियन है, स्काइथो द्राविडियन है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी। टुरानियन है। तो डिफरेंट रेसेस जो थी, एच.एस. रिचले, पीपल ऑफ एच.एस. रिचले ने पीपल ऑफ इंडिया सेंसस किया, सबसे पहले कंडक्ट करवाया एच.एस. रिचले ने। ओके, तो इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज थी, रेसेस को डिवाइड किया डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इंडो आर्यन थी, उसमें द्राविडियन थी, मंगोलॉइड्स थे, ओके, और द्राविडियन थे, मंगोलॉइड्स थे, आर्यो द्राविडियन थी, ठीक, आर्यो द्रविडियन, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के लोग जो थे वो आर्यो द्रविडियन थे, द्रविडियन थे वो साउथ इंडिया के लोग थे, नॉर्थ इंडिया के लोग इंडो आर्यन थे, मंगोलॉइड थे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लोग। स्काइथो द्रविडियन की बात कर हम करें तो वेस्ट, मान लीजिए वेस्टर्न कॉस्ट में जो रहते थे, जैसे है ना, टुरेलियन थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ब्रॉड हाइडेड, मीडियम कम्प्लेक्शन। तो ये था इसकी इंडो आर्यन रेसेस की क्लासिफिकेशन। एस.एस. सरकार की क्लासिफिकेशन की बात करें, इन्होंने क्या किया, ब्लड ग्रुप स्टडी किए, एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी किया,
तो इन्होंने कहा कि नेग्रिटो का बारे में बताया कि सबसे अर्लीस्ट इनहेबिटेंट जो थे इंडिया के वो नेग्रिटो थे। ऐसा सरकार ने, तो इन्होंने दूसरी क्लासिफिकेशन थी प्रोटो एस्ट्रोलाइड और मंगोलॉइड और मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स और नॉर्डिक। तो ये 6 क्लासिफिकेशन थी, इसमें आयरन का कोई जिक्र नहीं था। इन्होंने कहा कि सबसे जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन थी वो थी निग्रिटो की। निग्रिटो एलिमेंट दिया इन्होंने। इन्होंने कहा, ऐसा सरकार ने, और कहा कि डिफरेंट रेसेस को पढ़ना है, क्या उनकी हेड का साइज क्या होता है, नोज का साइज क्या होता है, और बॉडी का साइज क्या होता है, बॉडी कंपोजिशन क्या है, बॉडी प्रोपोर्शंस क्या है, उसको स्टडी करने के हम ये रेसेस को स्टडी कर पाते हैं। ऐसा सरकार ने भी अपनी रेशियल क्लासिफिकेशन दी। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेसेस को उन्होंने बताया। ऐसा सरकार के दोबारा डिफरेंट जो रेसेस जो थी इंडिया में वो कौन कौन सी थी। नेग्रिटो रेस थी, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड रेस थी, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स, और मंगोलॉइड थी, उसके बाद मेडिटेरेनियन थी, और वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स थी, और नॉर्डिक थी। ठीक है, नॉर्डिक आ गए नॉर्दर्न इंडिया के। ठीक है, और वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स कौन से आ गए, वेस्टर्न इंडिया के। अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मिनॉइड। अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मिनॉइड। तो मेडिटेरेनियन थे, वेस्टर्न प्लेन्स के, साउदर्न प्लेन्स के, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रह रहे थे वो मेडिटेरेनियन थे। तो डिफरेंट ऐसे सरकार ने क्लासिफिकेशन जो थी मेडिटेरेनियन की थी। प्लेन्स में जो रह रहे थे ब्रैचिसेफल्स की थी, अल्पाइन, डिनारिक, अर्मिनॉइड। जो वेस्टर्न इंडिया में जो रह रहे थे वो लोग थे। मंगोलॉइड जो थे वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रह रहे थे, हिमालयन रीजन में रह रहे थे। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो थे वो सेंट्रल इंडिया की, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में रहने वाले लोग थे। नेग्रिटो जो थे अर्लीस्ट, सबसे पहले जो रहने थे इंडिया में वो थे नेग्रिटो। और नॉर्डिक जो थे वो टॉल थे, मीडियम स्टेचर के थे, नॉर्थ इंडिया के थे, लॉन्ग हेडेड थे। जीएस गोरे ने क्या किया, इन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल के बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं की। ओके, तो रेशियल डिवीजन को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट रेशियस के एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन्होंने 6 मेन एथिकल एलिमेंट्स दी। जैसे नेग्रिटो है, ठीक है, उसने भी दिया था। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड उसने भी दिया था। मंगोलॉइड उसने भी दिया था। वेस्टर्न ब्रैचिसेफल्स दिया था। नॉर्डिक दिया था। मेडिटेरेनियन दिया था। तो इन्होंने कहा कि जो है जो नेग्रेटो की जगह नॉर्डिक, नेग्रिटो की जगह नॉर्डिक, नेग्रिटो टू नॉर्डिक जो थे वो सेम थे। तो इन्होंने भी कहा कि रेस में डिफरेंट कोई आप कह नहीं सकते कि प्योर रेस है इंडिया में। मिक्स रेसेस, एक इंसान में डिफरेंट रेशियल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट उसकी रेशियल ग्रुप्स है, कल्चरल ग्रुप्स है। तो यही हमको यूनाइट करते हैं। तो कहा कि इंडियन सिविलाइजेशन की ये खासियत है, कल्चरल यूनिटी पे फोकस किया। ठीक, कल्चरल यूनिटी पे फोकस किया। और जीएस गुरे की बात करें तो एच एस रिसले जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और एस एस सरकार जो थे ये उसके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। जीएस गुरे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे, मॉडर्न 20th सेंचुरी में आए ये। ठीक है, तो इंडियन पॉपुलेशन को डिवाइड किया। ओके, तो इसको भी डिवाइड किया सोसाइटी। तो अब डिफरेंट रेसेस दी। तो अब जेनेटिक्स को ऐड किया इन्होंने, ऐसे सरकार ने। और जीएस गुरे ने शिफ्ट फोकस किया कल्चर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो अब क्रिटिसिज्म की बात करें तो कॉलोनीज का इन्फ्लुएंस था, वो क्रिटिसिज्म था। तो अनसाइंटिफिक थी ये थोड़ी सी, रेस कंसेप्ट जो था आउटडेटेड था। तो लिमिटेड टू फिजिकल ट्रेड्स ओनली, फिजिकल ट्रेड्स पे ही फोकस किया था। तो बायोलॉजिकल वेरिएशन को इन्होंने इग्नोर किया, और टू आइडियलिस्टिक यूनिटी के ऊपर ये टू आइडियलिस्टिक थे जीएस गुरे। यूनिटी जो थी वो टू आइडियलिस्टिक थी, आइडियल जो था वो फीचर था। ओके, तो आपको गाइस इस वीडियो में हम जहाँ तक ही रखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या रेसेस क्लासिफिकेशन जो दी थी, अपने अपने तरीके से उन्होंने बंदों को डिवाइड दिया। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट जो रेशियल एलिमेंट्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्राची सेफल्स हैं, फिर उसके बाद नॉर्डिक है ना, अल्पाइन, प्राची सेफल्स है, मेडिटेरेनियन है,
है ना। तो नॉर्डिक है, नेग्रिटो है, साउथ ड्राविडियन है, तो डिफरेंट रेशियल एलिमेंट्स है। तो इन्होंने कहा कि हम एक जैसे हैं, हम कल्चरली यूनाइटेड हैं, है ना, हम डिफरेंट नहीं हैं। तो इन्होंने अंडरप्ले किया फिजिकल ट्रेड्स को, इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने कहा कि तो जो है कल्चरली उसको डिफाइन करने की कोशिश की। ओके गाइस, इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं आगे। ओके। रेशियल क्लासिफिकेशन की बात करती है, फिर सेर्कोपिथिसिडॉए है ना, होमो हाइड्रोपैचिडी होमिनोइडी को डिवाइड किया, होमिनिडेई में आ गया, है ना। फिर सर्कोपिथिसिडॉई है, फिर प्लेटिरिन कैटिरिन सर्कोपिथिसिडॉई और होमिनिडॉई उसके ऊपर हम चले गए। फिर हमने बताया कि कैसे एंथ्रोपॉइड्स प्लेटिरिन कैटिरिन और आप देखोगे स्ट्रैक्चरिनी हैप्लोरिनी ओके। तो टार्शी फॉर्म्स एंथ्रोपॉइड्स तो ये एक क्लासिफिकेशन की है हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। प्राइमेट्स एक बेसिकली एक मैमल्स हैं, ठीक है, उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रेशियल क्लासिफिकेशन है, तो रेसेस को डिवाइड किया था एसएस सरकार ने, एसएस रिसले ने, जीएस बुरे ने। जीएस बुरे की जो थ्योरी है उसने रिलाई किया था ज़्यादा कल्चरल यूनिटी पे, ज़्यादा ही उसने फोकस किया। एसएस सरकार ने जी बात की जाए तो रेस एलिमेंट जो है वो आउटडेटेड है। एचएस रिसले की बात करें, रेशियल एलिमेंट जो है वो आउटडेटेड है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉलोनियल पीरियड में दी थी ये थ्योरी, ठीक है। जो कॉलोनियल तो साइंटिफिक थी थ्योरी, मल्टी डायमेंशनल थी, ठीक है। तो लिमिटेड ये थी, सिर्फ फिजिकल ट्रेड्स पे ही लिमिटेड थी, ये फिजिकल ट्रेड्स के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन की इन्होंने। ओके। तो अब देखा जाए कि रिसले की रेशियल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल थी, ओके, सरकार की साइंटिफिक थी। तो इन्होंने कहा कि कल्चरल इंटीग्रेशन पे फोकस किया, ना कि रेशियल डिवीजन पे फोकस किया। ओके। तो आप देखोगे कि हम जब हम प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ओके, प्रोटो सिविलाइजेशन की बात हम करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमने इंडियस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करना होता है। ये ब्रॉन्ज एज में ये सिविलाइजेशन आई थी, और इसको 3 फेसेस में हम डिवाइड करते हैं, प्री हड़प्पन फेज, हड़प्पन फेज और पोस्ट हड़प्पन फेज। तो यहाँ ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन थी इंडिया की। इसकी डिफरेंट साइट्स हैं, मेहरगढ़ देन हड़प्पा मोहनजोदाड़ो मोहनजोदड़ो देन लोथल धोलावीरा राखीगढ़ी चनमुदारो बीड मेकिंग फैक्ट्री थी यहाँ पे। एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिस किया करते थे ना, यहाँ पे कोई बड़े बड़े मंदिर थे ना, ये इनके रिलीजन के बारे में हमें आइडिया है यहाँ पे। हाँ, ये स्ट्रैटिफिकेशन यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ पे हमें लोअर स्टडी मिलते हैं, हायर स्टूडेंट्स मिलते हैं। डिवीजन जहाँ पे सोसाइटी की थी, क्लास में डिवीजन थी। तो मेहरगढ़ मेहरगढ़ में हमें फार्मिंग के रिमेन्स मिलते हैं, एविडेंसेस जो है फार्मिंग के, अर्लीस्ट एविडेंसेस। आप देखोगे कि फार्मिंग शुरुआत हुई थी, क्रेसेंट में शुरुआत हुई थी, आज का जो इजराइल ईरान और फर्टाइल क्रेसेंट में। तो अब मेहरगढ़ की बात करें, मेहरगढ़ में अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं फार्मिंग के। ओके। तो अमरी अमरी जो है अमरीनाथ, कोट डीजी, कालीबंगन बनगम है राजस्थान में।
धोलावीरा है गुजरात में, ये भी साइट्स हैं। तो यहाँ पे आपको पोट्री मिलती थी, रेड वेयर और पोट्री थी, व्हील मेड पोट्री थी, हैंडमेड पोट्री थी। ओके, ट्रेड्स ये करते थे, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड था, इजिप्ट के साथ ट्रेड था, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड था। तो इससे क्या हुआ, एक बेसिकली फाउंडेशन हुआ, कल्चर का फाउंडेशन हुआ, इकोनॉमिक फाउंडेशन हुआ, अर्बन फेस आया, फुली डेवलप हो गया था। मोहनजोदाड़ो है, धोलावीरा है गुजरात में, कालीबंगम है राजस्थान में, रोहतक है गुजरात में, धोलावीरा भी गुजरात में है। गुजरात रोहतक क्या एक पोर्ट सिटी थी, यहाँ पे आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सिंध में है, पाकिस्तान में है, और हड़प्पा जो है पंजाब के पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो सिंध के पाकिस्तान में है, धोलावीरा जो है वो आप देखोगे गुजरात में है ना। तो उसके बाद धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगम राजस्थान में है, रोहतक गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है। कालीबंगम धोलावीरा ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये स्थित है, और यहाँ से हमें क्या मिला है। यहाँ पे हमें पब्लिक बाथ्स मिले हैं, बड़े बड़े ग्रीनरीज हमें मिले हैं। ओके, डॉक यार्ड मिला है हमें, वेल्स मिली हैं, ब्रिक्स से हाउसेस बनते थे, बर्न्ड ब्रिक्स से हाउसेस थे यहाँ पे, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम था, सिटाडल था यहाँ पे, लोअर टावर्स थे। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न था इनके हाउसिंग का। इकोनॉमिक की बात करें तो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड था इनका। स्क्रिप्ट इनकी अनडिसाइफर्ड है, तो कहाँ पे हमें सील्स के ऊपर इनकी स्क्रिप्ट मिलती है, पोट्री के ऊपर इनकी स्क्रिप्ट मिलती है हमें। ठीक है, तो रिलीजन की बात करें, क्योंकि हमें प्रोटो शिवा मिला है, हमें मदर गॉडेस की फिगरिंग्स मिली है, सैक्रेड ट्रीज, एनिमल्स। ठीक है, सोसाइटी में क्या थी, क्लास डिफरेंशिएशन जहाँ पे विजिबल मिलती है। ठीक है, एक्टिंग्स का कोई एविडेंस नहीं मिला, वारफेयर का कोई एविडेंस मिला, कोई वायलेंस वहां पे हुआ था जिसकी वजह से ये खत्म हो गई सिविलाइजेशन, कोई एविडेंस नहीं मिला। अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी ये, कंटेम्पररी थी, इजिप्ट के कंटेम्पररी में थी और मेसोपोटामिया के कंटेम्पररी में थी। तो आप देखोगे इसकी डिक्लाइनिंग हो गई, क्लाइमेट की वजह से डिक्लाइनिंग हो गई, किसी ने कहा फ्लड की वजह से डिक्लाइनिंग हो गई। ओके, तो बुरियल प्रैक्टिसेस कहाँ पे था, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर था। ठीक है, इसके बाद हमारा वैदिक पीरियड शुरू होता है, जहां पे वर्णास की शुरुआत हुई थी वैदिक पीरियड में, ये बाद में शुरू होता है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो आप देखोगे कि प्री हड़प्पन है, मेहरगढ़ है, अमरीनाड, कोडीजी है ना, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है। मेच्योर में आप देखोगे जुल्का कल्चर था सिंध में। तो आप पोट्री यहाँ पे मिलती है, क्राफ्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, ट्रेड ये करते थे। ओके, तो ये बेसिकली पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री थी। ठीक है, पोट्रीज की बात करें, पोट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी अगर हम बात करें कैसी पोट्री थी, तो व्हील मेड थी पोट्री, हैंडमेड पोट्री थी, रेड वेयर थी, ब्लैक वेयर थी। तो तो मोटिव्स उनके ऊपर थे, फिश बनाते थे, पीकॉक्स बनाते थे, बुल्स बनाते थे, पीपल के लीव्स, पेंटिंग वो करते थे पोट्री के ऊपर। रेड वेयर पोट्री थी, प्री हड़प्पन पोट्री।
आप देखोगे कि सिग्निफिकेंस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते थे। रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर, ग्रे वेयर, मिनिएचर पोट्री थी, परफोरेटेड पोट्री थी, पॉलीक्रोमेट पोट्री मिलती थी, मल्टी कलर पेंटिंग। पॉलीक्रोमेट मीन्स पॉलीक्रोम पोट्री मीन्स मल्टी कलर पेंटिंग। रेड कलर इस्तेमाल करते थे, ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते थे, ओके, वाइट येलो कलर का इस्तेमाल करते थे। तो हम मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझे, हम इस तरह से समझे जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ओके। एवोल्यूशन की बात की जाए तो एवोल्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, पैलोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड आया, क्या सिविलाइजेशन थी, एग्जीबिशन क्या थी, मॉडर्न डेवलपमेंट्स क्या थी, तो आप देखोगे कि ग्रोथ कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो अब ये है जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड की, ओल्डेस्ट है और कॉन्टिन्यूस है। तो जब जर्नी इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई, हंटिंग गैदरिंग से शुरू हुई। तो अब प्री हिस्टोरी को हम डिवाइड करते हैं पैलेयोलिथिक पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक कैल्कोलिथिक पीरियड में। आप देखोगे कि कैसे इन पीरियड से जब गुजरते हैं हम, तो हम देखते हैं एवोल्यूशन होता है सोसाइटी का, ह्यूमन काइंड का, टेक्नोलॉजी का, कल्चर का एवोल्यूशन देखते हैं हम। तो आप देखेंगे कि किस तरह से अडेप्टेशन किया गया, ह्यूमन ने इनोवेशन की, क्रिएटिविटी दिखाई, प्रोग्रेस दिखाई, और ये बेसिकली फाउंडेशन भी था और लेटर सिविलाइजेशन जो आई इसके बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन का फाउंडेशन कहाँ पे है, नियोलिथिक कल्चर में। नियोलिथिक कल्चर का फाउंडेशन कहाँ पे है, जो इससे पहले जो सिविलाइजेशन थी। पैलेयोलिथिक पीरियड की बात करें, ठीक है, स्टोन टूल्स मैंने बताया आपको, है ना, वो रॉक शेल्टर में रहता था, क्रेव शेल्टर में रह के उसने टाइम गुजारा, वो हंटिंग करता था, सर्वाइवल मोड में वो रहता था। तो सोन वैली है, सोन वैली भीमबेटका है, ढेलन वैली है। तो पैलेयोलिथिक एज में अगर हम देखेंगे, सोन वैली है, भीमबेटका है, ढेलन वैली है। तो केव्स में रहते थे लोग उस टाइम पे, एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, पोल्ट्री की कोई नॉलेज नहीं थी, तो कोई परमानेंट सेटलमेंट तो था नहीं उनका। तो आप देखेंगे कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, भीमबेटका साइट्स है, सोन वैली है ना, बेलेंट वैली है उत्तर प्रदेश में, पैलेयोलिथिक साइड है। और स्टोन मेसोलिथिक की बात करें तो ये 10,000 बीसी तक चली, 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक चली, 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक चली मेसोलिथिक एज। तो ये ट्रांजिशन फेज था। तो टूल्स की बात करें तो मेसोलिथिक में टूल्स हमने माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल किया, स्मॉल टूल्स का इस्तेमाल किया। तो हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ वो डोमेस्टिकेशन भी करते थे, फिशिंग भी करते थे। अब मेसोलिथिक पीरियड में फिशिंग करते थे वो, इसका मतलब बोट्स उन्होंने बना ली थी, ठीक है। तो आप सेटलमेंट्स की बात करें तो बगौर है, तिलवाड़ा है, लंजनात है। बगौर राजस्थान में है, आजमगढ़ मध्य प्रदेश में है, ओके। तो सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स थी उनकी। मेसोलिथिक की साइट्स की बात हम करें, बगौर है राजस्थान में, तिलवाड़ा है, लंजनात है, भीमबेटका साइट भी है, मेसोलिथिक साइट भी है, बेलन वैली है, सोन वैली है, बगौर है, आजमगढ़ है, बगौर एंड आजमगढ़ मेसोलिथिक साइट्स हैं। तो अब देखेंगे कि इस टाइम पे अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में आर्ट किया, मेसोलिथिक पीरियड में जो आर्ट किया, आर्ट में वो क्या करते थे, हंटिंग सीन्स को डिपेक्ट करते थे, डांसिंग वो करते थे, हंटिंग करते थे,
तो इस देखा जाए कि उनका कल्चर जो है वो इवॉल्व हुआ, उनकी सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई, उन्होंने अडेप्टेशन किया नए क्लाइमेट के साथ, अडेप्टेशन की। नियोलिथिक पीरियड की बात करें, क्योंकि पैलेलिथिक पीरियड एक आइस एज का आइस एज डीप थी इस टाइम पे, आइस एज थी इस टाइम पे। तो निएंडरथल्स आइस एज में रहे वो, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गया। एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, इसके लिए भी बड़ी सारी थ्योरीज है, बट कोई एक हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि वो एक्सटिंक्ट क्यों हो गए। ठीक है, होमो इरेक्टस भी एक्सटिंक्ट हो गए। नियोलिथिक पीरियड की बात अगर हम करें तो नियोलिथिक पीरियड को हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। मिडिल ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अब साइट्स की बात करें, मेहरगढ़ है ना, चिरांड है, मेहरगढ़ चिरांड, ये साइट्स हैं नियोलिथिक एज। तो एक नियोलिथिक एज को हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी, पोट्री की शुरुआत हो गई थी, यहाँ पे वो डोमेस्टिकेशन भी तो कर ही रहा था, है ना। परमानेंट विलेजेस सेटल्ड लाइफ थी, विलेजेस का शुरुआत हो गई थी। मेहरगढ़ है साइट्स, ओके, चिरांड है, बेलन वैली है, सोन वैली है, भीमबेटका है। फिर इसके बाद मेसोलिथिक साइट्स आती हैं, बगोर है, तिलवाड़ा है, लंजनात है। फिर उसके बाद नियोलिथिक साइट्स आती हैं, आदमगढ़ है, मेहरगढ़ है। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के एविडेंसेस हमें मिले हैं। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन की एनिमल्स की इन्होंने। यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स जो थे वो पॉलिश्ड थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे, क्रूड से नहीं थे, क्रूड वन से पहले टूल। और पोट हैंडमेड ज्वेलरी भी ये लोग पहनते थे। ठीक है, सोशल रिलीजियस लाइफ भी थी, सोल्स में बिलीव करते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, स्पिरिचुअल। तो डेवलपमेंट हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो रिचुअल लाइफ शुरू हुई इनकी। नियोलिथिक कैलकोलिथिक फेज की बात करें तो नियोलिथिक कैलकोलिथिक फेज में क्या हुआ, हमने कॉपर का इस्तेमाल किया और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया। तो आहार बानस जोन है, आहार राजस्थान में है, कायथा मध्य प्रदेश में है। नियोलिथिक कैलकोलिथिक फेज जो है, बेसिकली ये फेज से फाउंडेशन ले किया, ग्राउंड प्रिपेयर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वर्ल्ड का अर्लीस्ट अर्बन सेंटर था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मेटल नियोलिथिक कैलकोलिथिक एज में जो यूज किसका हुआ, मेटल्स का यूज हुआ, स्टोन का यूज हुआ, कॉपर का यूज हुआ। ठीक है, तो ट्रेड नेटवर्क्स भी हुए, पेंटेड पोट्री भी बनाई गई नियोलिथिक कैलकोलिथिक में। तो आप देखोगे कि प्री हिस्टोरिक एक लॉन्ग जर्नी है। ठीक है, तो एडवांस हुआ, क्रूड स्टोन टूल्स बनते थे, फिर कॉपर के टूल्स बनने लगे, केव लाइफ से सेटल लाइफ में आ गए, हंटिंग गैदरिंग में आ गए। तो कम्प्लेक्स सोसाइटीज बनाएगी ना उसके बाद। तो डॉन की शुरुआत जो हुई थी इंडियन सिविलाइजेशन की, अडेप्टेशन, प्रोग्रेस, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है। ये बात की जाए तो कल्चरल हेरिटेज की हम बात कर लेते हैं। तो इस ये वीडियो मैं 1.5 घंटे की ही बनाऊंगा गाइस, ओके। तो आगे हम और आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए वीडियोस के साथ, नए नए आइडियाज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ग्रोथ ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया।
तो आप देखोगे कि किस तरह से जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है इंडिया में ग्रोथ कैसी हुई, प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, आर्कियोलॉजिकल शुरुआत कैसे हुई। तो आप देखोगे कि प्री हिस्टोरिक कल्चर की शुरुआत अगर हुई होगी तो इसका मतलब किसी ने स्टडी की होगी ना, तभी तो पैलेलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड हम पढ़ रहे हैं, तो किसी ने तो काम किया होगा इसके ऊपर। रॉबर्ट ब्रूस फुटे जो थे, फादर कहा जाता है इंडियन प्री हिस्ट्री का, इन्होंने फर्स्ट पैलेलिथिक टूल डिस्कवर किया, फर्स्ट पैलेलिथिक टूल। ओके, तो उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रोल प्ले किया। फिर सिस्टमेटिक, पहले तो अर्ली फेज क्या था, प्री हिस्टोरिक रिसर्च शुरू हुई, सर्वे किए उन्होंने नॉर्थ साउथ इंडिया में, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टोन टूल्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद क्या हुआ, साइंटिफिक बन गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बनाई गई अलेक्जेंडर कनिंघहाम ने, ठीक है। एच डी सनकालिया, डी एन वाडिया, एच डी सनकालिया जो थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की, डी एन वाडिया ने भी काफी कंट्रीब्यूशन की। हंगसी, नेवासा जो है, नेवासा कल्चर, मिडल, आई थिंक मिडल पैलेलिथिक ये साइट है निवासा महाराष्ट्र में। डीएन वाडिया मेजर एग्जीबिशंस की, सोन वैली को डी टेरा पैटरसन ने एग्जीबिट किया, ठीक है। तो आप देखोगे कि साइट्स की एग्जीबिशन तो हुई ही हुई है। पाइनियर थे ये एच डी सनकालिया, मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन को, ह्यूमन ओरिजिन को अंडरस्टैंड किया, स्टडी किया। तो मॉडर्न में हम क्या करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है, थर्मोल्यूमिनेसेंस किया जाता है, डीएनए एनालिसिस किया जाता है। आर्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डेक्कन कॉलेज जो है, ये इन्होंने रिसर्च एक्टिविटीज की है, इंटरनेशनल टीम्स के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, तो जॉन मार्शल, आर डी बैनर्जी, दयाराम साहनी ने इनकी की। ए घोष, आहार राजस्थान में ए घोष ने की, ठीक। इमाम गांव जो थी एच डी सनकालिया ने की। तो चिरान बिहार जो है एएसआई ने की। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में जेएफ जैरिट्स ने की। आजमगढ़ की मध्य प्रदेश में भी साइट्स थे, भगोर राजस्थान वीएन मिश्रा ने की, ठीक है। भीमबेडका वीएस बकानकर ने की, डीएन वाडिया, वीएस बकानकर, एग्जीबिशन की, डिस्कवरीज की। तो आर्कियोलॉजी की देखा जाए तो बहुत सारा काम जो है इंडिया में हुआ, सिस्टमेटिक तरीके से हुआ, सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से एग्जीबिशंस हुई। तो नाम आता है एच डी सनकालिया का, रॉबर्ट ब्रूस फुटे का, इन्होंने बहुत सारी एग्जीबिशंस की। डीएन वाडिया, वीएन बकानकर, डीएन वाडिया, और जो थे रॉबर्ट ब्रूस फुटे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थे, इन्होंने काम किया, ग्रोथ हुई। डीएन वाडिया, एच डी सनकालिया, वी डी कृष्णा स्वामी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघहाम ने फाउंड किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एग्जीबिशन की साइट्स की, उसके बाद सोन वैली की साइट्स की एग्जीबिशन की थी, जी टेरा पैटरसन की एग्जीबिशन हुई थी। उसके बाद आप देखोगे डीएन वाडिया ने काम किया, एच डी सनकालिया ने काम किया, निवासा में काम किया, और मध्य प्रदेश में काम किया। मेजर एग्जीबिशंस हुई, सोन वैली की किसने की, जेएफ एट्रिज ने की, भीमबेडका वीएन मिश्रा ने की, राजस्थान में था। भगोर राजस्थान में ये वीएन मिश्रा ने की। भीमबेडका वीएन बकानकार ने की। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में किसने की, जेएफ एट्रिज ने की। चिरांड
ये ऐसा ही नहीं कि बहुत सारे एग्जीबिशन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो किसने की, साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, डेक्कन कॉलेज है। तो बहुत सारे काम जो है अलग अलग टाइम पीरियड्स पे हुए, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किए, है ना। आप देखो वीएस कानकर और वीएन मिश्रा ने बगौर राजस्थान, बगौर लंजनाथ तिलवाड़ा, ये साइट्स हैं, मेसोलिथिक साइट्स हैं। तो वीएन मिश्रा ने एग्जीबिशन की, याद करो वीएन मिश्रा ने एग्जीबिशन की बगौर राजस्थान में एग्जीबिशन की, ठीक है। वीएन मिश्रा ने की बघौर को एग्जीबिशन, वीएन मिश्रा ने की। फिर उसके बाद भीमबेटका, वीएस मुकानकर ने की। भीमबेटका मध्य प्रदेश में वीएस मुकानकर ने की। बगौर जो थी वीएन मिश्रा ने की। मेहरगढ़ जो था जेएफ जेएफ जैरिट्स ने की। चिरांड आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की। इमाम गांव एच डी सनकालिया ने की। आहार, तो ये साइट्स हैं। आहार जो है राजस्थान में ए घोष ने की। आर्चोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन एग्जीबिशंस की, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन एग्जीबिशन की, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स किए, साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, रेडियो कार्बन डेटिंग, देन थर्मोल्यूमिनेसेंस, सैटेलाइट इमेजरी, डीएनए एनालिसिस की से काम किया, एग्जीबिशंस की, साइट्स की। तो वेरियस साइट्स की बात करें, न्यूलिथिक साइट्स, मेसोलिथिक साइट्स, पैलियोलिथिक साइट्स की बात करें, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका, सोन वैली मेसोलिथिक साइट्स हैं, बगौर आदमगढ़, ठीक है, बेहद बलूचिस्तान, चिरांड है बिहार में, नियोलिथिक कैलकोलिथिक हार साइट्स, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं, इनको पढ़ना है आपने, डिटेल में डिस्कस करना है गाइस। तो यही चीजें हैं, इन्हीं को आपने पढ़ना होगा, डिस्कस करना होगा गाइस, तो समझोगे। तो प्री हिस्टोरिक, आप देखोगे कि वीएन मिश्रा है, उन्होंने बगौर की, वीएन मुकामकर ने आदमगढ़ की, भीमबेटका की, सॉरी। उसके बाद जो थे हार की वीएन घोष ने। उसके बाद एच डी सिंकालिया ने इमाम गांव की महाराष्ट्र में। उसके बाद सोन वैली की जी टेरा पेटरसन ने की। बेलन वैली की जेएफ राइटरिज ने की। तो बहुत सारी साइट्स की एग्जीबिशन हुई, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने एग्जीबिशन की। पैलियोलिथिक साइट्स थी, कुछ मेसोलिथिक साइट्स थी। तो यहाँ पे उन्होंने काम किया बड़े अच्छे तरीके से, उन्होंने एग्जीबिशन की, साइंटिफिक तरीके से एग्जीबिशन की, थर्मोल्यूमिनेसेंस, साइंटिफिक इमेजरी का इस्तेमाल किया, डीएनए एनालिसिस किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो हुआ था, वो अलेक्जेंडर कनिंगमैन ने किया था। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी, और डेक्कन कॉलेज है एच डी संकालिया उस कॉलेज के थे, इन्होंने भी सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक रिसर्च एरिया की, साइट्स की, एग्जीबिशंस की। फिर दयाराम साहनी और आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो और हड़प्पा की एग्जीबिशंस की। ओके, तो आप देखोगे कि साइट्स बेलन वैली है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, सोन वैली है, देन अहार है, मेहरगढ़ है, चिरांड है, बगौर है,
बेलन वैली भीमबेटका है, बेलन वैली है उत्तर प्रदेश में। तो ये साइट्स हैं। एच डी संकालिया, डी एन वाडिया, वी डी कृष्णा स्वामी, एच डी संकालिया ने की, नेवासा की, डी एन वाडिया ने की, सोन वैली भीमबेटका है, बगौर है, मेहरगढ़ की जैरिड्ज ने की, जैरिड्ज ने की। ओके गाइस, तो ये सारी एग्जीबिशंस की हमने बात की, प्री हिस्टोरिक कल्चर को हमने अंडरस्टैंड किया। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, प्री हिस्टोरिक कल्चर को हमने अंडरस्टैंड किया। हमने अंडरस्टैंड किया ग्रोथ ऑफ आर्कियोलॉजिकल इन इंडिया, आर्कियोलॉजी इन इंडिया, वो हमने पढ़ा। हमने प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर हमने पढ़ा। ओके, हमने रेशियल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। हमने ओके guys, that's all for in this video। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें गाइस। बाय बाय गाइस, टेक केयर।